Welcome students. Today in today's video we are going to start the new unit, that is unit number 4. Okay, the name of the unit is X-ray diffraction. Okay, the fourth unit we are going to start, that is X-ray diffraction in the spectroscopy. See, in this is your unit 4, diffraction technique. The head name is diffraction technique. This we are going to start. It is of spectroscopy, paper 4. See, in this X-ray we have four parts: X-ray diffraction. The next part is electron diffraction and neutron diffraction. See, in this I had made tick mark which questions came in the exam, and for how many marks, that also I made tick mark. So in this X-ray diffraction application, they have asked Bragg equation, they have asked the Louis method and Bragg's method and Debye-Squimitz method. Only we will discuss the topics which came in the exam. Okay, which didn't came in the exam, that we will not discuss. Okay, so which I made tick mark, this topics, they came for 4 marks. The marks also I have written there. In this also, which topic came in the previous papers, that only we will discuss here in the video. So this portion is not asked, only this one topic is asked, Ramachandra diagram. In this also 3 or 4, 1 2 3 4 topics are asked, and application also asked. So like this we'll start our today's video with Bragg's condition. Bragg's condition is given, and in the third or fourth it's Bragg's method. So these two are the same thing. In this two, Bragg's condition and Bragg's method, we have to derive the Bragg's equation, and in both case also you can write the same thing which I'll tell you now. Okay, so in this such type of question is asked in the exam on the topic Bragg's equation, that is derive Bragg's equation, how it is useful for structure identification of unit cell. Okay, this type of question is asked from the Bragg's equation, derive Bragg equation. So we will derive now, and how much part I will tell you in this Bragg's law, everything you will write in such type of question. So let's start. Now what is Bragg's law? See, in this what they have used the X-ray they have incident the X-ray on the crystal. See, the one crystal they have taken, they have taken. We know in crystal there are atoms. In crystal there are atoms, they are arranged in a proper sequence. In this way the atoms are arranged in the proper sequence. All the atoms are arranged in a proper sequence, and in crystals there are so many planes. ओके इसके एक क्रिस्टल होता है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं. कोई भी क्रिस्टल ले लो, हर क्रिस्टल के अंदर एटम्स होते हैं, और वो बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं, और बहुत सारे प्लेन्स भी लाई करते हैं क्रिस्टल्स के अंदर, और वो प्लेन्स पैरेलल होते हैं. सपोज इस क्रिस्टल के अंदर ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, फिर उसके बाद ये वाला एक प्लेन है. ऐसे बहुत सारे प्लेन होते हैं, या फिर एक ऐसा प्लेन रहेगा, ऐसा प्लेन, ये ऐसा प्लेन, ऐसे बहुत सारे प्लेन्स भी होते हैं क्रिस्टल के अंदर. एंड एवरी प्लेन इज पैरेलल टू द अदर प्लेन. ओके, ऐसा होता है क्रिस्टल के अंदर. तो हमें ब्रैग्स इक्वेशन के अंदर क्या पढ़ना है, हम ऐसा कोई क्रिस्टल लेने वाले हैं, इसके ऊपर ही रेडिएशन डालने वाले हैं, और वो जो रेडिएशन रहेंगे वो रहेगा एक्सरे. ठीक है, तो देखो ये हमारा एक क्रिस्टल है, इसके ऊपर हम रेडिएशन डालें. ये एक रेडिएशन है, कौन सी रेडिएशन है, एक्सरे है. ये एक रेडिएशन है, और ये दो रेड्स फॉल कर रहे हैं. तो ये एक रेडिएशन सरफेस पे स्ट्राइक किया है, और ये बाउंस बैक हुई, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं. ये रेडिएशन यहाँ फॉल हुई और फिर रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, तो इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं. डिफ्रैक्शन मतलब कोई भी रेडिएशन किसी सब्सटेंस को स्ट्राइक करके फिर से बाउंस बैक हो रही है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन. तो इसमें ये ब्रैग्स इक्वेशन में यही बोला है, क्रिस्टल बिहेव्स हैज इफ डिफ्रैक्टेड beam were reflected from the plane passing through the point
दैट मेक्स द क्रिस्टल लाइट एनालॉगस टू। इसमें यही बोला है कि अगर ये जो क्रिस्टल है ये हैज़ ए मिरर समान एक्ट कर रहा है, हैज़ ए मिरर समान एक्ट कर रहा है। मिरर पे भी कोई लाइट अगर पड़ती है तो वो लाइट फिर से बाउंस बैक होती है। तो वैसे ही हम लोग इस ब्रैग इक्वेशन डिराइव करने के लिए जो क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर जो एक्सरे हम लोग फॉल कर रहे हैं, वो एक्सरे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, सिमिलर हैज़ मिरर के समान एक्ट कर रहा है। अब हम लोग इक्वेशन की तरफ आते हैं। देखो अब इन्होंने क्या किया, एक लाइट फॉल किया है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, ये लाइट फॉल हुई है यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, तो ये एंगल बना रहा है, ये भी एक एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये जो दो रे है, ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हमने पीछे, इसको भी, ये तो एक्सटेंड ही था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया पीछे, ठीक है। और ये जो यहाँ तक ये रे थी उसको भी थोड़ा एक्सटेंड किया पीछे, एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, ये परपेंडिकुलर हो गया इस रे के ऊपर, और इसको भी एक्सटेंड किया, ये परपेंडिकुलर हो गया इस रे के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखो इसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो लाइन है ये और ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये वाली लाइन ये और ये इक्वल है आपस में, ठीक है, ये बताया है। अब इसके बाद मैंने अभी बताया है कि इसको मैंने एक्सटेंड किया यहाँ तक और इसको मैंने एक्सटेंड किया यहाँ तक, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद ये हो गया ये और ये, ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये हो गया पाथ डिफरेंस, इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस, ए बी और बी सी। क्यों पाथ डिफरेंस बोलेंगे, देखो ये वाला ये और ये इक्वल है ना, इसको एक्सटेंड किया यहाँ तक, ये भी यहाँ तक, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, आपस में पैरेलल है, तो ये वाला ये दोनों पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और इसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस, इन दोनों का पाथ डिफरेंस, ये भी हो गया इन दोनों का पाथ डिफरेंस, तो इससे ये सेम है, इससे ये सेम है, तो ये भी दिस प्लस दिस, ये भी पाथ डिफरेंस हो गया। तो हम लोग पाथ डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं दिस प्लस दिस। क्यों बताया मैंने अभी, ये वाला ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पाथ डिफरेंस ए बी प्लस बी सी लिख लिया, पाथ डिफरेंस। अब उसके बाद क्या है, देखो ये एंगल थीटा बनाया है मैंने, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो हमको पता है साइन क्या होता है, साइन थीटा, ये साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन थीटा इक्वल टू लेंथ इंटू हाइपोटेनस, ये लेंथ है ना इसका, इस तरफ से एंगल बनेगा, इस तरफ से एंगल बनेगा, इस तरफ से एंगल ये थीटा, तो इसका ये थीटा का ये लेंथ हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन, तो हम लोग लिखेंगे इसको साइन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, फिर इसको भी हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, इसके लिए ये लेंथ है और ये हाइपोटेनस है, इसको लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो वही लिखा है, देखो साइन थीटा ये और ये, इस ट्रायंगल में लिखा है, इस ट्रायंगल में लिखा है दिस अपॉन दिस, और इस ट्रायंगल के अंदर लिखा है दिस अपॉन दिस, ये दो ट्रायंगल। तो ठीक है, फिर ए बी ये आ जाता है, साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, इसको ए बी साइड में लिखेंगे, ये यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आ गया। सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू सी बी अपॉन डी बी, इसको यहाँ पे ला देंगे, सी बी इक्वल टू साइन थीटा बी डी। अब ये हो गया हमारे ए बी और सी बी। अब ये ए बी और बी सी, यानी ए बी और बी सी लिखा है, बी सी को सी बी भी बोल सकते हैं या बी सी भी बोल सकते हैं, है ना, बी सी भी बोल सकते हैं या सी बी भी बोल सकते हैं। तो ये जो ए बी की ये वैल्यू और सी बी की ये वैल्यू, ये दोनों इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, ये दोनों इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और एक चीज़ बताना भूल गई, पाथ डिफरेंस को एन लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको 1 पकड़ना है, इसको नहीं 1 पकड़ना है, इसको 1 पकड़ना है।
पाथ डिफरेंस को एन लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, पाथ एन लेमडा इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ये दो वैल्यू मिली है, ए बी की ये वैल्यू, सी बी की ये वैल्यू, तो दोनों वैल्यू हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इस तरफ इक्वेशन बन जाएगा हमारा। दोनों वैल्यू पुट कर दी मैंने। फिर ये डी बी साइन थीटा प्लस डी बी साइन थीटा सेम सेम है, तो ट्वाइस डी बी साइन थीटा लिख दिया। तो डी बी की जगह मैंने डी लिख दिया। देखो यहाँ पे डी बी क्या है, डी बी, ये डी है ये बी है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इंटर, इसको बोलते हैं इंटरप्लेनर डिफरेंस। डी क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ये दो इसको हमने डी से रिप्रेजेंट करना है हमको। तो बस डी बी की जगह मैंने डी लगा दिया, और साइन थीटा तो हमारा क्या हो गया, एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये हो गया हमारा ब्रैक्स इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा, ब्रैक्स, ये हो गया हमारा ब्रैक्स इक्वेशन। ठीक है, बस इतना ही। इसमें लैम्डा जो है, लैम्डा है वेवलेंथ है किसकी, जो रेस फॉल कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। एन है वो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है, और 2, 3, 4 चेंज होते रहेगा ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। डी है, बताया मैंने, दो प्लेन का बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रैक्स इक्वेशन। अब नेक्स्ट है, और नेक्स्ट टॉपिक इज लॉई फोटोग्राफिक मेथड, LAUE, Loy photographic method. It is also asked for 4 marks in the exam. See in this method, same method है ये तीनों भी, एक ब्रैक्स इक्वेशन, लॉइस मेथड, और इसके बाद जो हम लोग एक पढ़ने वाले हैं पॉर्टर इक्वेशन, ये तीनों सेम ही है। ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन तीनों में। अभी इसमें क्या है, पहले वाले इसमें भी हम लोग एक्सरे यूज़ किया था। देखो ये फिगर के इसमें ये क्रिस्टल लिया है, ये क्रिस्टल की पोजीशन कांस्टेंट रखा है। क्रिस्टल को मैंने बताया, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन होते हैं, वो प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं, उल्टे फुल्टे प्लेन्स रहते हैं। और ये ठीक है, ये क्रिस्टल हो गया, उसकी पोजीशन फिक्स कर दी हमने। यहाँ से हम लोग रे पास कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन से हम लोग रेस पास कर रहे हैं। कौन सी रे है, एक्स रे है। ये इसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक होने के बाद ये डिफ्रैक्शन होगा, एक इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन, इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन होगा, इस डायरेक्शन डिफ्रैक्शन होगा। फिर ये जो डिफ्रैक्शन हो गया, फिर ये फोटोग्राफिक प्लेट लगाइए, फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर ये डिफ्रैक्शन जो है इसका मेजरमेंट होगा। तो हमको इस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर डॉट डॉट ये लुईस स्पॉट मिलेंगे। स्पॉट मतलब इस टाइप के स्पॉट में जो फोटोग्राफिक प्लेट मिलेगी हमको, इस टाइप के स्पॉट्स मिलेंगे ऐसे। तो उस स्पॉट से ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं ये लोग। ठीक है, ये इस मेथड में ये होता है लॉइस मेथड, ये वो पुराना मेथड है। और इस मेथड में ये इस टाइप के स्पॉट्स मिलते हैं हमको फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर, वो स्पॉट्स डिटरमाइन करते हैं। तो यही लिखा है इसके अंदर लॉइस फोटोग्राफिक मेथड के अंदर। ठीक है, ये पढ़ लेना, तुम्हें देख लो एक बार अच्छी तरह से। ठीक है, ये पूरा लिखना है तुम्हें यहाँ तक। थोड़ा फोकस करती हूँ मैं, और देखो दिख रहा है। ये देखो, ठीक है। तो इस तरफ से लिखना है तुम्हें। वो लिखने की, उतना पोर्शन लिखने के बाद तुम लोग एडवांटेजेस लिख लेना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख लेना। फोटोग्राफिक प्लेट की क्या क्या एडवांटेजेस है। तो दिस मेथड इज वाइडली यूज फॉर रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल ओरिएंटेशन और सिमेट्री। जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का ओरिएंटेशन और उसकी उसकी सिमेट्री डिटरमाइन करने के लिए लुईस मेथड यूज़ करते हैं। और ये यूनिट सेल है, इज टू एस्टैब्लिश द शेप। क्रिस्टल के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट सेल होते हैं उसके शेप भी डिटरमाइन करते हैं ये इस लुईस मेथड से। एंड डिसएडवांटेजेस का, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस मेथड से, बहुत पुराना मेथड होने की वजह से इससे प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं होता। इसे सिर्फ शेप ऑफ यूनिट सेल डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।